السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ڈیئر سسٹرز، ہم نے ابھی ناول کا پارٹ 7 سنا، حوض کوثر کے بارے میں، اور کئی چیزیں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی۔ اگر کوئی سسٹر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ رائز کر لیں، ٹھیک ہے؟ میں اپنی شیئرنگ کر دیتی ہوں، اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے اپنی شیئرنگ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہینڈ رائز رکھیں اپنے جو بھی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا کیا سیکھنے کو ملا آج کے سیشن میں ہمیں؟ سب سے پہلے تو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو گواہی کے بعد جو ہے نا کیا ہوا، یعنی جب عبداللہ نے پوچھا صالح سے، تو صالح نے کیا کہا، یعنی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو پایا اور اس دور میں ان کو فالو کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے کے جو کرسچینز تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ساری انہوں نے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سنائے، اور یعنی ان کے احکام میں یہ بھی تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ماننا ہے، میرے جانے کے بعد وہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی جنہوں نے خالصتاً کی، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نا پھر معاف کر دیا جائے گا، ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہے نا معاف کر کے یعنی انہیں جو ہے نا پھر وہ بھی جنتی ہی ہوں گے، یاد رکھیں۔ لیکن جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو صحیح سے فالو نہیں کیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ان کے حکم میں سے ایک حکم تھا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں مانتے آج کے کرسچینز بھی، تو سبحان اللہ ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو بے شک ہی کفر ہے، اور کفر کا جو انجام ہے وہ جہنم ہی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو سچا ماننا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ سچا ثابت کرنا عمل سے۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ساتھ ہی ان کے باتوں پہ عمل بھی کیا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جنہوں نے کیا ان کے لیے جو ہے نا معافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جیسا کہ وہاں پہ کہا گیا کہ لیلا بھی جو ہے نا، ہم دیکھیں گے آگے اس کے بارے میں بھی کہ کس طریقے سے اس کو نجات ملی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا تھا، یعنی آج کے کبیرہ گناہوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ مانے زنا، شراب اور یہ ساری چیزیں، سبحان اللہ۔ لیکن ایک انویزیبل کبیرہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے، جسے ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا، لیکن وہ ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے بڑے بڑے سارے گناہ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ زنا، یہ شراب، بے حیائی، فحاشی اور کرائمز جو بھی ہو رہے ہیں نا، سبحان اللہ، ان کی جڑ ہے ایک کبیرہ گناہ جو ہمیں نہیں پتا ہے، وہ ہے کہ قرآن کو اس کا حق نہ دینا، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، سبحان اللہ، جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں۔ ہم قرآن دورہ سے دورہ، رمضان سے رمضان پڑھ لیتے ہیں، روزانہ بھی تلاوت کر لیتے ہیں، سپارے پہ سپارے پڑھ لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس کی تجوید بھی سیکھ لیتے ہیں، اس کو ہر چیز کر لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں، سبحان اللہ، اس کے لیے وقت نہیں لگاتے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل ہی سمجھنے کے لیے کیا گیا تھا، تدبر، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور لاسٹ سیشنز میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے آپ کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے قرآن کا؟ کیا ہمارے دل ڈرتے ہیں؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ کیا ہمیں یعنی سمجھ ہی نہیں آتا تو اثر کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں، جو ہم سے ہو رہا ہے کہ ہم نے آج قرآن کو رسماً رکھ دیا، رسمی طور پہ اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا۔ یہی شیطان کا کھیل ہے کہ کرنے والے کاموں سے غافل کر کے نہ کرنے والے کاموں میں لگا دیتا ہے، بیکاز ہی نوز کہ اگر یہ بندہ قرآن کو سمجھ لیا تو میرا کیا چلے گا اس کے اوپر، میری بات یہ نہیں مانے گا، میں تو اسے جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں، میں نہیں لے جا پاؤں گا، میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے سبحان اللہ میں اس کو باقی سارے کاموں میں الجھا دیتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی جو ہے نا عظیم کتاب ہے، اس کو سبحان اللہ تم نے یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ وہ کرنا ہے۔ لیکن اصل عظمت کیا تھی اس کی کہ آپ اس کو سمجھ کر اس پہ لیو کرتے ہیں، لیونگ قرآن بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں پہلی قوموں کو کیوں تباہ کیا گیا تھا، ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ پہلی قومیں اور ساتھ ہی مشرکین مکہ اسی قرآن سے جو کفر کیا تو اس کا انجام تھا نا، اللہ کی کتاب کا جو بھی اس دور میں تھی، سبحان اللہ، تو اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، اس کو پیٹھ پیچھے ڈال کر زندگیاں گزارنا، اس کے لیے بہانے دینا، بغیر کسی شرم و حیا کے مسلمان کہتے ہوئے خود کو بہانے دینا۔ مشرکین مکہ کوئی کافر نہیں تھے، یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی یعنی دوسرے دیور مسلمز، وہ ابراہیم علیہ السلام
का जो है ना इनकार नहीं करते थे। वो बड़े गर्व से कहते थे खुद को कि हम जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है ना ये नस्ल से हैं, और इस तरीके से वो गर्व करते थे इस बात पर। देवर मुस्लिम्स ऑफ दैट टाइम, सुभान अल्लाह। क्यों हम मुशरिकीन कहते हैं उन्हें? क्योंकि उन्होंने अपने दीन में नई नई चीजें इजाद करके खलत मलत करके अल्लाह के साथ कई बुतों को भी सुभान अल्लाह खुदा बना लिया था, जैसा आज मुसलमान करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बुत इन द सेंस वही बुत नहीं जो मंदिरों में होते हैं, सुभान अल्लाह। बुत इन द सेंस कई बुत, यानी चाहे वो कब्रें हो, चाहे वो सुभान अल्लाह यानी यानी क्या कहते हैं नफ्स का बुत हो, चाहे ख्वाहिशात का बुत हो, चाहे वो बहानों का बुत हो जो कुरान के लिए देते हैं, सुभान अल्लाह। जब कोई दाई दीन कुरान की तरफ बुलाता है तो शोहर जॉब बच्चे करके सुभान अल्लाह बहाने देते हैं, और फिर समझते क्या है पता है आपको, कि सुभान अल्लाह कुरान के लिए एक्सक्यूजेस देकर ये बच्चे हमारे लिए खैर का जरिया बनेंगे, ये जॉब में बरकत आएगी, ये शोहर से हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, सुभान अल्लाह। वल्लाही वल्लाही जिस चीज को आप अल्लाह के कलाम के लिए बहाना बनाती है, कभी किसी रोज वो चीज आपको फायदा नहीं देगी, बिलीव मी और नॉट। आपको टेम्पररी फायदे नजर आ रहे होंगे सुभान अल्लाह, लेकिन एट द एंड उससे सिर्फ और सिर्फ आपको दुनिया आखिरत में नुकसान ही नुकसान है, बिलीव मी सुभान अल्लाह। मैंने हजारों को देखा है ऐसे सुभान अल्लाह, जो इस तरीके से कुरान के लिए बहाने देते हैं, फिर जो है ना मुश्किलें जब उनके ऊपर आती हैं तो अल्लाह ताला को कोसते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। क्यों आई मुश्किलें? आपकी वजह से आई सुभान अल्लाह, आपके करतूत की वजह से आई सुभान अल्लाह। और हमने देखा जब अल्लाह ताला ने पहले कौमों को बचा लिया, तो ये सॉरी पहले कौमों को तबाह किया, तो उनमें अच्छे लोग भी थे ना, मोमिन भी थे ना। आज मेरे आपके जैसे भी लोग हैं ना सुभान अल्लाह, जो कुरान के लिए बहाने नहीं देते, जो कुरान को समझते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं सुभान अल्लाह। तो ऐसे लोगों को, मोमिनों को सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने बचा लिया। आज भी यही होगा। आज मुसलमान हर जगह टारगेट किए जा रहे हैं सुभान अल्लाह, यानी हुक्मरान चाहते हैं कि इनको दबा दें, इनको ये करें वो करें सुभान अल्लाह। लेकिन यानी वो मुसलमान जो सुभान अल्लाह कुरान के बगैर जिंदगी गुजारे, वो तो इसके जद में आ जाएंगे। ठीक है, ये अल्लाह की सजा ही याद रखे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की यानी ये जो कुरान को पीठ पीछे डालकर जिंदगी गुजारी थी ना, इसका ये जो है ना अंजाम है सुभान अल्लाह। लेकिन यानी वो लोग तो इसके जद में आ जाएंगे, लेकिन जैसे अल्लाह ने उस दौर में मुसलमानों यानी मोमिनों को बचा लिया ना, आज के दौर में भी सुभान अल्लाह स्टूडेंट्स ऑफ कुरान को अल्लाह ताला बचा लेंगे सुभान अल्लाह, गायबाना तौर पे। हाँ, आपको अंदाजा नहीं हो सकता, आपके नेबर के साथ वो जुल्म होगा, आपके साथ वो जुल्म नहीं होगा, ये अल्लाह की गैबी मदद आएगी। आप वो ईमान तो लाएं जो कुरान से मिलता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी तरीके से और क्या होगा आज के मुसलमानों का भी जो है ना, यानी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि जो भी मुसीबतें तुम पर आती है तुम्हारी हाथों की कमाई है, तो वो सबसे बड़ी कमाई क्या है पता है? वो कुरान से दूरी है सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह हो रहा है। क्या करना है हमने? तौबा करनी है, बहाने छोड़ना है, कुरान से जुड़ना है, उसका हक अदा करना है। क्या है कुरान का हक? कि हम उसको, उस पर ईमान लाएं सबसे पहले, और उसको सही तजवीद के साथ सीखें, समझें, गौर व फिक्र करें, उसको अमल में लाकर उसको आम करें। ये फर्ज है। इट्स नॉट एनी क्या कहते हैं इसको, कि ये एक्सक्यूज्ड हो जाएगी, ये बात नहीं, ये फर्ज है। जैसे आप देखें यानी किसी भी चीज का एक मकसद होता है ना, कुरान का मकसद था हिदायत। हिदायत कब मिलेगी? समझने से मिलेगी। फ्रिज का एक मकसद होता है ना कि वो चीजों को ठंडा करे। अब आप कहती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट करना, यानी पावर लगाना फ्रिज को, फर्ज है या नफिल है? ये कैसी बात है सुभान अल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाएंगे तो काम कैसे करेगा फ्रिज? कुरान को समझेंगे नहीं तो फायदा कैसे होगा आपको सुभान अल्लाह, हिदायत कैसे मिलेगी? उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूँ सुभान अल्लाह। यहूदियों को अल्लाह सुभान व तआला ने वो दिया था जो किसी को नहीं दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर भी उन्होंने नाकदरी की, तो क्या हुआ सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने दो जो है ना अजीम तबाहियां उनकी हुई। इराक के बादशाह बख्त नसर के जरिए, और दूसरे जो है ना रूमी टाइटस के हाथों सुभान अल्लाह उनको जो है ना अल्लाह ताला ने सजा दी। आज हुक्मरानों के हाथों से क्यों मुसलमानों को सजा मिल रही है? बिकॉज
ऑफ देयर सिंस। जैसे यहूदियों के साथ हुआ, बनी इसराइल के साथ हुआ, आज मुसलमानों के साथ भी वही हो रहा है। बिकॉज दे आर फॉलोइंग बनी इसराइल स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह कर गए ना कि तुम बनी इसराइल को वैसे फॉलो, यानी जूम का तुम उन्हें फॉलो करोगे और अंजाम भी वैसा ही होगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के साथ भी, यानी एक दफा ततारियों के साथ और दूसरा यूरोपीय अक़वाम के साथ, सुभान अल्लाह, उनका भी। और आज कहीं पे भी देख ले, हर जगह मुसलमान इसीलिए हुक्मरानों के हाथों टारगेट किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान को पीठ पीछे डाल दिया। पहले की कौमों ने भी किताब को पीठ पीछे डाल दिया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन यानी अगर वो फर्मा बरदारी करते तो अल्लाह उन्हें दुनिया में भी देता। आज दे रहा है ना मुसलमानों को दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स की गवाहियां मौजूद है, जिन्होंने यानी कुरान से जुड़ा, कुरान को समझा, और सुभान अल्लाह सबीलुल जन्नह या फिर किसी भी अथेंटिक प्लेटफॉर्म से सुभान अल्लाह उन्होंने कुरान का इल्म लिया, लिविंग कुरान बन के जिंदगियां गुजारे। उनकी हर तरीके के प्रॉब्लम्स, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंशियल हो, डिप्रेशन, वॉट एवर इट मे बी, उनकी गवाहियां मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक ग्रुप में शेयर करती हूँ, वो उनकी जुबानों से आप सुने कि कैसे उनकी जिंदगियां जन्नत बन गई। सुभान अल्लाह, कैसे उनकी जिंदगी आसान हो गई दुनिया में। ये थोड़ी ना आप अभी जन्नत में गए हैं, दुनिया सुभान अल्लाह फिर जन्नत बन जाती है, बिलीव मी। ऐसा नहीं कि गम नहीं आते, महसूस नहीं होते गम, सुभान अल्लाह। बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आ जाए सुभान अल्लाह, महसूस नहीं होती सुभान अल्लाह, और अक्सर आते भी नहीं है, बिलीव मी और नॉट, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इतनी आसान जिंदगी अल्लाह ताला देते हैं कुरान के बाद। ये शैतान है जो कहता है कि कुरान के बाद जिंदगी मुश्किल हो जाती है, अमल बड़ा मुश्किल है। वल्लाही वल्लाही मैं कहती हूँ कि दीन बड़ा आसान है। ये शैतान है जिसने इसको आपको कह दिया कि ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप डरती हैं कि हम कुरान सीखेंगे तो अमल करना पड़ेगा, इस वजह से नहीं सीखती। ये शैतान का धोखा है। बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, अल्लाह का वास्ता है, सुभान अल्लाह। शैतान के इस धोखे से बाहर आके तो देखिए, आप पछताएंगे पिछली जिंदगी पर कि काश मैं पहले कुरान से जुड़ी होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मुसलमानों ने मकसद हयात भुला दिया, ठीक है, यानी पहले की कौमों ने भी मकसद हयात भुला दिया। क्या था मकसद हयात? आज उम्मत मुस्लिमा का भी क्या है कि खुद को और बाकी सबको खुदा से जोड़ो, कुरान से जोड़ो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीर। ये है मेरी आपकी ज़िंदगी का मकसद। यानी फिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जब ये भुला कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो सुभान अल्लाह क्या होगा? रसवाई ही होगी। सुभान अल्लाह। देखें, अगर रेफ्रिजरेटर अपना मकसद पूरा ना करे, चीज़ों को ठंडा ना करे, हम क्या कर देते हैं? उसको रिप्लेस कर देते हैं। सुभान अल्लाह। हम उसको निकाल देते हैं, निकाल फेंकते हैं घर से, क्योंकि वो हमारी चीजों को ठंडा नहीं कर रहा, वो अपने मकसद को नहीं पूरा कर रहा। तो हम क्यों रखेंगे कचरा अपने घर में? अल्लाह भी नहीं रखता ऐसे कचरे को, अल्लाह जला देता है जहन्नुम में ऐसे कचरे को जो अपने मकसद हयात को पूरा नहीं करते। सुभान अल्लाह, चाहे वो नाम के मुसलमान भी क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और क्या कहते हैं कि ये सजा देख कर भी सुभान अल्लाह नहीं बदल रहे हम। यानी ये सारी चीजें अल्लाह ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, अल्लाह ने हर हुज्जत तमाम कर दी। आज हम देखते हैं क्या, हम यानी हर हर जगह आप देख ले मुसलमान रुसवाएं, क्या हमारी आंखों को नहीं नजर आ रही ये चीजें? अल्लाह अकबर। वही तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि आंखें नहीं उनकी अंधी, दिल अंधे हैं, दिल। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दिल मुर्दा हो चुके हैं, क्यों हुए? क्योंकि बार बार कुरान की दावत पर उन्होंने इनकार किया, बहाने दिए। एक वक्त आया कि अल्लाह आने ही नहीं देता। सुभान अल्लाह। आप देखें, आप किसी दावत पर किसी को बुलाती हैं, 3-4 बार बुलाती हैं, नहीं आता तो आप 5वीं दफा बुलाएंगी? नहीं बुलाएंगे। अल्लाह का भी यही मामला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इंसान बड़ा ढीठ है, याद रखे, लेकिन कल के दिन ये ढीठपन उसको कितना सताएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। और जब मुसलमानों ने तौबा की और अपना मकसद पूरा किया, तातारियों को दावत दी, तो फिर से जो है ना मुसलमान सुपर पावर बने। अल्लाह अकबर। आज भी देखें, अगर हम तौबा करेंगे तो वल्लाही अल्लाह दुनिया में पहले देगा। आप बिल्कुल आखिरत का ना सोचें, दुनिया में अल्लाह पहले देगा, उसके बाद जैसी दुनिया वैसी आखिरत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तो याद रखेंगे, अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं, बिलीव में, आप जब समझेंगे ना कुरान को पता चलेगा कि अगर वो तौबा करते, तकवा इख्तियार करते, हम आसमान से भी देते, जमीन से भी देते उनको। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि सुभान अल्लाह दीन बड़ा गरीब है और वो दीन पर आने के बाद हमें लग्जरियस लाइफ छोड़नी पड़ेगी, एंजॉय ही नहीं कर सकती? कौन कहता है? सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें सुभान अल्लाह यानी फैलाई हुई है रूमर्स है बस। सुभान अल्लाह, असल तो दीन इतना एंजॉयबल है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम एंजॉय करें इस लाइफ को। आज सुबह ही मैंने मिसाल दी थी कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम कोई भी अगर खाना खाएं ना, तो उसको अच्छे तरीके से उसका पूरा मजा लें। कब लेंगे आप मजा? जब अल्लाह ताला के हुदूद में रहकर एंजॉय करेंगे।
ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہیں گے تو یعنی آپ سوچیں آپ کھانا کھا رہی ہیں، بیچ میں کوئی کڑوی چیز آتی ہے، ایک کھٹی چیز آتی ہے، تو آپ کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے نا. تو سملرلی یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کڑوی کھٹی چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں. جیسے کھانے میں آپ نہیں پسند کرتے، اللہ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی میں آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ باؤنڈریز سیٹ کیے. جب آپ باؤنڈریز کو پار کرتی ہیں، نان اسلامک چیزوں کو زندگی میں لاتی ہیں، تو وہی مثال ہے کہ کھانا تو آپ بڑا مزیدار کھا رہی ہوتی، چاہے وہ پیزا ہو، بریانی ہو، حلیم ہو، واٹ ایور جو بھی آپ کا پسندیدہ ڈش ہے، سبحان اللہ، لیکن بیچ میں کھٹی اور کڑوی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہی ہماری بھی زندگی کے ساتھ ہوگا، یاد رکھیں. تو کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے، قرآن سے جڑنا ہے. اور سبحان اللہ یہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو فرائض سے اوپر اٹھ کر قربانی کرتے تھے، یعنی وی آئی پی کل بنایا اللہ، یعنی وی آئی پی کی طرح، سبحان اللہ، ویری امپورٹنٹ پرسن، سبحان اللہ، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو وہ مقام دیا. کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے مقام دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف سبحان اللہ فرائض کے ساتھ نہیں تھے کہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر دے، بس اتنا ہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ سبحان اللہ ان سے اوپر اٹھ کر سبحان اللہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے دن اور رات لگائے، سبحان اللہ اپنے. اللہ اکبر کبیرہ. خود کی ہی فکر نہیں کی بلکہ امت کا غم سہا، امت کی فکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اسی درد کے ساتھ آگے لے جائیں میں اور آپ. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ آج ہم نے فرائض سے نہیں اوپر اٹھنا، میں کہتی ہوں کہ آج پہلے آپ بہانوں سے اوپر اٹھیں، بہانوں سے اوپر اٹھ کر فرائض پر آئیں، پھر فرائض سے اوپر اٹھ کر آپ سبحان اللہ سنن و نوافل پہ جائیں گی اور قربانیوں پہ جائیں گے. سبحان اللہ. جو بندہ بہانوں میں ہے، جس کی فرائض تک صحیح نہیں، سبحان اللہ، آپ اس کو کیا وی آئی پی کا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج ہم نے سبحان اللہ خوشحال زندگی ایمان اور اطمینان کے ساتھ اگر آپ نے گزارنی ہے تو قرآن از دا اونلی سولوشن. کیا کہتے ہیں عبداللہ کہ کتنی کم محنت سے کتنا زیادہ صلہ مل گیا. واللہ واللہ دین بڑا آسان ہے، دنیا بڑی آسان ہو جاتی ہے دین کے ذریعے. سبحان اللہ. ہم کرتے اتنا ہے، رائی کے دانے کے برابر ہماری کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے بڑھ کر ہمیں اجر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کل کے دن جب بندہ اجر دیکھے گا تو یہ دنیا کی مشکلیں کچھ لگیں گی ہی نہیں اس کو. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. شیطان آپ کو کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ کہ تھوڑی سی جو محنت ہوتی ہے اسی کو اتنا بڑا کر کے دکھاتے. کوئی بھی کام اپنے دنیا میں بھی کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے سبحان اللہ تو آپ نے تھوڑی سی تو مشکل سہنی پڑے گی. ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ وہ جو مشکل ہوتی ہے نا اس کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ بندہ اس کے پیچھے کی کامیابی نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. اور اسی مشکل کو دیکھ کر پیر پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں نہیں مجھ سے تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. ہم نے شیطان کے اس دھوکے کو سمجھنا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پہ جو حوض کوثر کی بات کی گئی، اللہ اکبر، دل میں رغبت تو ہوتی ہے نا کہ ہمیں چاہیے. آج آپ بیانات میں بھی دیکھیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہر جگہ صرف حوض کوثر کی تعریف کہ ایسی ہوگی، یعنی ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ وہ، بس اتنا ہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. رغبت دلانا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں، لیکن اس کو پانا کیسے ہے؟ صرف باتوں سے تو یہ نہیں ملے گی. سبحان اللہ. یعنی آپ اس نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہتی ہیں جن کے لائے ہوئے پیغام کو آپ نے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سبحان اللہ زندگی میں نہیں سمجھا. فاتحہ سے ناس تک لفظ بلفظ ایک دفعہ آپ نے نہیں سمجھا. and you want حوض کوثر from his hand صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے خوش فہمیاں ہیں؟ بنی اسرائیل کی بھی خوش فہمیاں ایسی ہی تھی. اب جائیں قرآن میں پڑھیں، اس والا ساری ہسٹری اللہ نے رکھ دی ان کے سامنے کہ دل کا امانی ہوں، ساری ان کی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، کچھ نہیں ہے فائدہ دیں گی انہیں. آج مسلمانوں کے بھی عمل کے بغیر صرف خوش فہمیاں کرنا، امید رکھنا کہ سبحان اللہ یہ ملے گی، تو یہ اصل امید نہیں ہے. یہ بس سبحان اللہ آپ کی چاہت ہے، جو کہ چاہتوں سے جنت ملنی ہوتی. سبحان اللہ تو ہر کوئی جنت ہوتا، کون چاہتا ہے کہ جہنم میں جائے؟ سبحان اللہ کوئی نہیں چاہتا، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ بات ہم نے نہیں بھولنی، یاد رکھیں. اللہ اکبر. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو، قرآن اور اتھینٹک سننا کو سمجھنے کے لیے زندگیوں کو کھپانا ہے، لگانا ہے، یاد رکھیں. اللہ اکبر. سمجھنا تو دور، بہانے دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. ہاؤ کیا اتنا آسان ہے، اتنا سستا ہے حوض کوثر کا پانی. نعوذ باللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. صرف محبت کے دعوے کرنے سے مل جائے گی کیا؟ اصل محبت یہ ہے نہیں آپ کے شوہر صرف آپ سے محبت کے دعوے ہی کرتے رہیں، آپ کا ایک حق نہ دے، صرف آپ کی تعریفیں ہی کرتے. بیگم آپ تو بڑی خوبصورت ہیں، آپ تو نہ وہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ دیتے، نہ خرچ کے لیے، نہ آپ کی وہ خواہشات پورے کرتے ہیں سبحان اللہ، نہ ضروریات تک پوری نہیں کرتے. کیا ایسے شوہر کو آپ پسند کریں گے؟ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کرتے ہیں سبحان اللہ.
जब बात सुन्नत की आती है, जब बात लिविंग कुरान पढ़ने की आती है तो सुभान अल्लाह पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब बात सुभान अल्लाह नातों की आती है, जब बात दावों की आती है, सबसे आगे सुभान अल्लाह, अमल में सबसे पीछे। एंड यू वांट हिज शिफात, अल्लाह अकबर कबीरा। यानी शर्म की बात है, याद रखें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और यहाँ पे जो हमने देखा, यानी जो खुशफहमियां रखेंगे ना दुनिया में, एक तो देखें कि यानी कल शिफात और हौज़ कौसर का तो पता नहीं, लेकिन शौक जरूर मिलने वाला है कल के दिन, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहाँ पे हमने देखा लैला को निजात तो मिल गई। अब कहेंगे अरे देखो लैला को जो है ना उसकी बुरी दोस्ती के बावजूद भी निजात मिल गई। नहीं, कितनी सख्ती के बाद मिली। कि आप जिस सख्ती को लैला ने बर्दाश्त किया, आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं उस सख्ती को? अगर है तो बुरी दोस्तियां करें, किसी ने आपको मना नहीं किया। और निजात भी किस लिए मिली? क्योंकि बेचारी का ईमान जो है ना सलामत था, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आमाल भी अच्छे थे, बस थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी उस दोस्ती में, मामूली समझकर उसने कर ली थी, इस वजह से सुभान अल्लाह उसको पकड़ हुई और कितनी सख्ती हुई, अल्लाह अकबर। लेकिन देखिए दोस्ती दुनिया में कर ली थी ना अल्लाह ताला से, तो कल के दिन आसान हिसाब किताब हो गया, सुभान अल्लाह। आपका जो फ्रेंड होता है ना आपके साथ तो सख्ती नहीं करता, याद रखें। आपकी गलतियों को भी जानबूझकर वो नजरअंदाज कर देता है, बिकॉज ही इज योर फ्रेंड, ही लव्स यू। लेकिन आपने अल्लाह से दुनिया में दोस्ती ही नहीं की, तो आसान हिसाब किताब कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप अल्लाह ताला से? अल्लाह अकबर कबीरा। तो दुनिया में दोस्ती करनी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, और उसका मैंने आसान तरीका आपको पिछले सेशंस में बताया हुआ है, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो रब से दोस्ती करनी है। और यहाँ पे सवाले क्या कहते हैं, तुम्हारी बख्शिश तुम्हारे बाप की वजह से बिल्कुल नहीं हुई। ऐसा ना समझे कि मेरे बाप तो बड़े जो है ना नेक हैं, या फिर बाप छोड़े, आज लोग किस किस को नेक समझकर फला नेक मेरी सिफारिश कर देगा ऐसे समझते हैं, सुभान अल्लाह। यानी बाप खुद सुभान अल्लाह नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का कहते हैं कि तुम, यानी ए फातिमा दुनिया में जो चाहे मांग लो मैं दे दूंगा, लेकिन कल के दिन मैं नहीं काम आऊंगा, तुमने अमल करना है, अपने लिए तुमने अमल करना है। जब फातिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक नबी थे वो बाप नहीं बचा सकेंगे, ठीक है, तो आज के बाप कहाँ से बचाएंगे? जमशेद को बचा पाए अब्दुल्ला? सुभान अल्लाह, नहीं बचा पाए ना, अल्लाह अकबर कबीरा। तो लैला को भी अब्दुल्ला ने नहीं बचाया, सुभान अल्लाह, उसके अपने अमाल ने बचाया सख्तियों के बाद। ठीक है, और ये जो अब्दुल्ला के साथ वीआईपी मिला, ये बोनस में मिला, एक्स्ट्रा में मिला ये इसको, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अमाल तो खुद अच्छे से अच्छे करने हैं, लेकिन माँ बाप ने, यानी सुभान अल्लाह, आप देखें माँ बाप की नेकियां फिर औलाद को दुनिया में भी फायदा देती है और कल के दिन भी फायदा देंगी, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे हमने जन्नत की बातें सुनी तो कितना सुकून मिला ना, कितनी खुशी मिली। आप इमेजिन करें जब बातें ही सुनी तो इतना सुकून और खुशी मिली, सुभान अल्लाह। तो कुरान से जुड़ेंगे तो दुनिया में ये रियल प्रैक्टिकली ये सुकून और खुशी मिलेगी आपको, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ कि जन्नत तो वहाँ तो जो मिलनी है वो मिलेगी ही, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ कुरान को अल्लाह वो दुनिया में दिखाता है, बिलीव मी, मेरे मैं ऐसे ही नहीं बता रही, आई एम एक्सपीरियंस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ही नहीं, हर यानी हजारों सिस्टर्स इसके गवाहियां देती है, सुभान अल्लाह। आप सुन ले जाके, अल्लाह अकबर। और आप यहाँ देख रही है हैप्पी फैमिली टुगेदर फॉर एवर, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि दुनिया में उन्होंने एक दूसरे को अल्लाह से जोड़ा था, उन्होंने बहाने नहीं दिए थे शोहर बच्चों के, उन्हें शोहर बच्चों को सुभान अल्लाह कुरान से जोड़ा था, खुद भी जुड़ी हुई थी, उनको भी जोड़ा था, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमेशा याद रखें, जिनके बहानों से आप दूर होती हैं ना वो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जिनको आप जोड़ती हैं ना वो रिश्ते हमेशा हमेशा रहते हैं। दुनिया में मौत छोटी सी एक सेपरेशन तो हो जाती है, लेकिन कल के दिन फिर मिल जाते हैं और हमेशा की खुशी सुभान अल्लाह मिलती है। याद रखें, जो कुरान से जोड़ते हैं रिश्ते, वो हमेशा वो रिश्ते जुड़े रहते हैं, याद रखें, कोई ताकत उसको नहीं सुभान अल्लाह खत्म कर सकती, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। और जो इससे उलट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फितना और सबब, यानी गमों का सबब बनता है, याद रखें, अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से अल्लाह ताला माफ़ कर देते, बल्कि उसके शानी रहीमी से हमने नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों का अंजाम यहाँ पे देखा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। के अस्मा क्या कहती थी कि नहीं अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ये करेंगे वो करेंगे, फुला बख्शवा लेंगे, ये करेंगे। क्या हुआ यहाँ, किसी को कुछ ऐसा हो रहा है? दिख रहा है सुभान अल्लाह आपको? नहीं दिख रहा ना, सुभान अल्लाह। और ये नॉवेल को ये उन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं लाई, ये सारी चीज़ें कुरान और ऑथेंटिक सुन्नत से साबित है, सुभान अल्लाह बातें, अल्लाह अकबर कबीरा। और सुभान अल्लाह इसी तरीके से जैसे अब्दुल्ला की नेकियां फैमिली के लिए सुभान अल्लाह वीआईपी का दर्जा हासिल करने की जरिया बनी ना,
आप वो जरिया बने कल, यानी कि आपकी वजह से आपकी फैमिली को वो बुलंद दर्जात हासिल हो, आप वो बने। सुभान अल्लाह। हर कोई नियत करे, दुआ करे सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे वो बनाए जिसकी वजह से मेरी फैमिली को बुलंद दर्जात नसीब हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी तरीके से फानी दुनिया में थोड़ी सी सुभान अल्लाह मेहनत क्या कर ली, खुद को कुरान के लिए खपा क्या दिया, सुभान अल्लाह हमेशा की आखिरत मिल गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। यानी यानी इसी फैमिली की वजह से कई लोग कुरान से दूर भी होते हैं, और इसी फैमिली को कई लोग कुरान से जोड़ते भी हैं। अंजाम अपने अपने आप जानते हैं सुभान अल्लाह के क्या होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी सारी ख्वाहिशात आखिरत के लिए होंगी ना, सुभान अल्लाह, तो आपको दुनिया में अल्लाह देता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पहले होता है, और फिल आखिरती हसना बाद में होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फिर आग के असाब से भी बचा लेता है। देखिए मैं समझती हूँ क्या बचना है जो आग में जल जल के बाद में जन्नत में आई है, कि कोई बचना है? कोई चाहता है कि मैं पहले आग में अच्छे से जल भुन के मतलब फ्राई टोस्ट सब हो जाऊं, उसके बाद पाक होकर आगे यानी जन्नत में? नहीं, हम तो चाहते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया, जो हशर की सख्तियों से बचाकर सुभान अल्लाह अब्दुल्ला की तरह सुभान अल्लाह आसानियों से जन्नत में पहुंच जाए। ऐसे चाहते हैं तो अब्दुल्ला जैसे अमाल भी होने चाहिए। अब्दुल्ला के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो दाई दीन थे दुनिया में। सुभान अल्लाह, हमने भी दाई दीन बनना है, याद रखें। और आखिर में जो सूरत कसस के नंबर 60 और 61 यहाँ पे बता दी गई, क्या हमें सिर्फ इल्म है या यकीन भी है आखिरत पर? देखिए अगर यानी अक्सरियत के पास सिर्फ इल्म है, याद रखिए, इसीलिए अमाल सही नहीं। जिसे यकीन हो, देखिए जैसे आपको यकीन है कि फला जगह आग लगी है, आपके घर के पास आग लगी है, तो क्या आप उसी घर में स्टे करेंगी या फिर वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना चाहेंगी दूसरी जगह? सिर्फ इल्म होगा ना कि आग है तो आप नहीं जाएंगे, यकीन होगा अगर आपको कि आग है तो आप भागेंगी वहां से। सुभान अल्लाह, क्योंकि आप उस खुद को जलाना तो नहीं चाहेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। हम यहाँ दुनिया में इम्तिहान के लिए हैं, अच्छे से देंगे ना इम्तिहान, अल्लाह के हुदूद में रहकर एंजॉय करेंगे ना दुनिया को, तो यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। चॉइस इज योर्स, कि दोनों जगह कामयाबी चाहती हैं या दोनों जगह खसारा चाहती हैं, आपके हाथ में ये चीज़ है। सुभान अल्लाह। तो ये तो थी मेरी शेयरिंग, कोई और सिस्टर अगर शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू डी सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर बताएं। जी होप मेरी आवाज़ आ रही है। मैं हॉस्पिटल में थी, थोड़ा लेट हो गया सिस्टर ज्वाइन होने के लिए, मैं माजरत चाहती हूँ इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइव सुन लिया था, और सुनते सुनते बस मैं हॉस्पिटल भी आ रही थी तभी वही सुन रही थी। बस मैं वो चाह रही थी कि कहीं फंक्शन में जाते हैं ना, सब लोग रेडी होके पूरी फैमिली वाले, बेटी तुम भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, कैसे होते हैं ना, एक की सैंडल भी नहीं मिली, एक का ड्रेस भी नहीं मिला, तो पूरे फैमिली वाले वेट करते हैं। नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा ना। कहीं पिकनिक पे चले जाएंगे तो वेट करते हैं, मजा नहीं आएगा तुम्हारे बगैर, चाहे कितनी भी बेहतरीन जगह हो जाने के लिए। फैमिली का एक मेंबर भी छूट जाएगा तो सब लोग ना वेट कर लेते हैं, नहीं नहीं अगले हफ्ते कर लेंगे प्लान, फिर नहीं अगर तुम नहीं आ गए तो नहीं चलेगा। तो मैं बोलती हूँ कि इतनी बड़ी जगह जहां से कभी वापस नहीं आना है, किसी फैमिली के मेंबर को छोड़ के जाने का दिल करता है? किसी का भी? अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए, क्या बहनों को छोड़कर, क्या सास ससुर को छोड़कर, क्या पड़ोसियों को छोड़कर कोई जाना चाहेगा वैसी जगह पे? सिस्टर मैं शुरू से, ये मेरा पर्सनल शेयरिंग है, मैं पर्सनली सोचती हूँ, मैं जब भी कोई 5 स्टार होटल वगैरह देखती हूँ ना, यहाँ पे हैदराबाद में हाईटेक सिटी में बहुत सारे जबरदस्त होटल्स वगैरह हैं, बोलते हैं कि एंट्री भी नहीं ले सकते, एक एक नाइट का 10,000 रुपीज वो चार्ज करते हैं। तो मैं जाके वो देखती हूँ एंट्रेंस के टाइम पे, तो बोलती हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, मैं मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ूंगी, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ूंगी, और उसमें अंदर दाखिल हो जाऊंगी, तो वो कितनी बड़ी खुशी का दिन होगा। और यही मुझे मोटिवेशन मिलता है हर बार मैं जब वो एरिया में जाती हूँ ना, या अल्लाह ये तो दुनिया में सजाई हुई चीजें हैं, दुनिया में है, आखिरत का जब मैं दाखिल होंगी, ये सबसे बड़ी कामयाबी मुझे वो अता फरमा। और उसके लिए मुझे आंखें बंद करनी होगी आज की ऐशो आराम के लिए, मालूम, मुझे काम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे हमेशा की एंट्री वहां पे 10,000 पर नाइट नहीं होगी, वहां पे हर चीज फ्री होगी, बस दाखिले के लिए एंट्री टिकट ये है कि बस अल्लाह की आज इताअत कर लो। एंट्री के बाद तो वहां पे उसका कोई कीमत ही नहीं है। इतनी बड़ी आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं जहाँ से कभी वापस नहीं आना है, तो उसके लिए कितनी तैयारी आपको आपके घर वालों को करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई, जैसे आरिफा ने कहा ना अभी, कि पूरी जिंदगी भी खपा देंगे तो कम लगेगा। रोजे महशर की सख्तियों से बचकर जो निकल गया, और जहन्नुम से बचकर जो निकल गया, जन्नत में चला गया, फकत फाज, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको ये कामयाबी अता फरमाए। ये मेरी पर्सनल शेयरिंग, मैं वेट कर रही थी कि मेरा नंबर आए, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी भी मैं कोने में आ गई हूँ रिसेप्शन पे, और ये शेयर कर रही हूँ। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा, होप कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकी हूँ।
جی माशाल्लाह सिस्टर। बारकल्लाह, बहुत प्यारी शेयरिंग और अच्छा रिमाइंडर कि जिस जिस को भी आप जन्नत में ले जाना चाहती है ना दुनिया में, उन सबको कुरान से जोड़ दें. सुभान अल्लाह. जिस जिस को ले जाना चाहती हैं लिख लें सबके नाम, सुभान अल्लाह, कि कैसे मैं इनको जोड़ूंगी. पहले खुद जुड़े, उसके लिए पहले खुद जुड़े. सुभान अल्लाह, खुद समझे कुरान को, खुद स्टूडेंट ऑफ कुरान बने. फिर जब आप लाइट अप होंगी ना खुद, यानी कैंडल जब खुद लाइट अप होता है तब दूसरों को फायदा देता है. तो खुद को लाइट अप करें पहले, सुभान अल्लाह. और फिर जो है ना जिन जिन को जन्नत में ले जाना है सोचेंगे कैसे कैसे मैं इनको कुरान से जोड़ूंगी ना, वैसे वैसे इनके साथ इनको मैं जन्नत में ले जाऊंगी. सुभान अल्लाह. इंशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला. इंशाल्लाह। जी, कोई और सिस्टर शेयर करना चाहती हैं? या फिर हम अपनी मीटिंग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं? चले, मुझे किसी के हैंड नहीं नजर आ रहे. चैट में भी आप शेयर कर सकती हैं सिस्टर्स, हमें रिमाइंडर भी मिलेगा और एक दूसरे की अच्छे से इस्लाह भी हो पाएगी ना. चलें फिर यहीं पे रखते हैं. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीक. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबसे बेहतरीन तौर पे राज़ी हो. हम सब को जो भी हम नॉवेल सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे. और जो है ना हम प्रैक्टिकली जो है ना कुरान पे लिव एंड यानी लिव करें और साथ ही इसको दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी दुनिया आखिरत जो है ना बेहतरीन तौर पे संवर जाए ना. चले, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.